Good morning, students. Today I am going to start our second economic sector of Indian economy. First of all, we have to know about that what are economic activities. By the activities which we perform and we are able to earn money. वो एक्टिविटीज जिनको हम परफॉर्म करते हैं और हमें पैसा कमाने का मौका मिलता है या कमाते हैं. These activities called economic activities. We see many people around us perform many activities. Some people are engaged in producing goods. Some people are engaged in manufacturing. Some people are engaged in provide services to the other people. So there are many type of activities which perform by the peoples. How we will classify these activities in this chapter, we will discuss about it. Let's continue our topic. First is primary activities, primary sector. Primary sector. In the primary sector, we produce goods by exploiting natural resources. प्राइमरी सेक्टर में हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, वी प्रोड्यूस मैनी क्रॉप्स बाय यूजिंग लैंड, एंड लैंड इज ए natural resource. We rear animals and animals are also natural resource. Mining, when we perform mining and we abstract minerals ore from the earth, this is also came in primary activities because we are using natural resources. So these are the activities which produce goods by natural resources. They came in primary activities. Next is, we can say that primary sector is an agriculture sector. And why it is called primary sector? It is called primary sector because other sector is based on primary sector, so it provide base to the other sector, so it is called primary sector. And agriculture sector means the mainly activities which are performed in primary sector, they are agriculture activities, so this is called agriculture sector. Second is secondary sector. Secondary sector cover activities in which natural products are changed into other form through way of manufacturing that we associated with the natural activities. Means when we get things from the primary sector, when we produce things in the primary sector, these things came to the primary sector and convert into the finishing goods. Just example, for example, when we produce cotton crops in primary sector and we convert cotton into cotton fabric and in yarn in factories, so we can say the cotton fabric and yarn is a finishing good and it came in secondary sector. हमने क्या देखा? प्राइमरी सेक्टर में हमने प्रोड्यूस किया है थिंग्स को, हमने कॉटन को प्रोड्यूस किया, हमने शुगर केन को प्रोड्यूस किया. अब उनको हम फिनिशिंग गुड में कब चेंज करेंगे? उनको हम फिनिशिंग गुड में चेंज करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में. अब हमने कॉटन को प्रोड्यूस किया, कॉटन को प्रोड्यूस करके हम कहाँ लेके आएंगे? फैक्ट्री के अंदर लेके आएंगे और वहां से हम उसको कॉटन फैब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं. ऐसे ही शुगर केन को हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे आके उसको हम शुगर में कन्वर्ट कर देंगे और या उसको हम गुड़ के अंदर चेंज कर देते हैं. दूसरे भी अदर मिनरल्स और हैं, उनको हम कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं? अर्थ से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आएगा. और फिर क्या होता है कि उन्हीं को हम सेकेंडरी के अंदर लाके जो है वहाँ से बहुत तरह के अलग अलग मिनरल्स से दूसरे चीज़ें बना सकते हैं. तो ये हमारा सेकेंडरी में आ जाता है कि फिनिशिंग गुड्स तैयार की जाएंगी हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में. नेक्स्ट वन इज
टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर इज एसोसिएटेड विद प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल. ये हमें क्या देता है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है. अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्रॉप्स इन प्राइमरी सेक्टर वी ग्रो क्रॉप्स एंड सेकेंडरी में वी कन्वर्ट इनटू फिनिशिंग गुड्स. अब हाउ वी विल ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर. अब हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे रॉ मटेरियल विच वी प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेक्टर. अब जो प्राइमरी सेक्टर में हमने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया है, कॉटन प्रोड्यूस किया, शुगर केन प्रोड्यूस किया, जो भी हमने यहाँ पे चीजें प्रोड्यूस की हैं, उनको हम फैक्ट्रियों तक कैसे लेके जाएंगे. तो विद द हेल्प ऑफ टर्सरी सेक्टर की हेल्प से हम प्राइमरी गुड्स को, प्राइमरी रॉ मटेरियल को हम सेक्टर के अंदर, कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर हम लेके आएंगे और वहां पे ही उनसे फिनिशिंग गुड्स तैयार कर ली जाएंगी. अब यहाँ से जो फिनिशिंग गुड्स तैयार की गई हैं उनको हम मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे, उनको गोदाम तक कैसे पहुंचाएंगे, वो भी हम टर्सरी की ही हेल्प लेते हैं. सो टर्सरी इज ऑल्सो मेजर सेक्टर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. इट ऑल्सो हेल्प द अदर टू सेक्टर्स. There are many activities that undertaken by directly using natural resources. हम क्या देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत सारा हमने इस्तेमाल किया है, और बहुत सारी एक्टिविटीज हम प्ले करते हैं, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर ही आती हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी थी जो हम इंटायरली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर आज क्या देखते हैं, हम टेक्निक्स की हेल्प लेते हैं. तो टेक्निक्स से हम पूरी तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर बेस नहीं है. वो कैसे, हमने देखा कि हम पहले कॉटन क्रॉप जो थी वो कहाँ पे उगाते थे, वो मेनली हम ब्लैक सोइल के अंदर ही उगाते थे. परंतु आज हमारे पास टेक्निक्स ऐसी हैं कि हम दूसरी सोइल के अंदर भी कॉटन को उगा सकते हैं. साथ साथ हम क्या देखते हैं, जो बैरन लैंड होती हैं वहाँ पे भी जो खेती नहीं की जाती थी, आज हम मिनरल्स, आज हम जो मॉडर्न सीड्स ऐसे आए हुए हैं जो कि हम बैरन लैंड के अंदर भी आसानी से उगाए जा सकते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं, हम इंटायरली हम इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है. आज हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करके हम वहाँ पे भी क्रॉप्स को उगा सकते हैं. तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर था, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, इसको हम रिलेटिव सेक्टर भी कहते हैं, और दूसरे सेक्टर को भी ये बेस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हमने देखा इसके अंदर सेकेंडरी में हमने क्या देखा कि यहाँ पे गुड्स को कन्वर्ट, फिनिशिंग गुड्स जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और यहाँ पे हमने देखा कि दिस कुड बी इन फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर किया जाएगा, वर्कशॉप के अंदर और होम के अंदर किया जाता है. एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है. एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे कि हम कॉटन उगाते हैं कहाँ पे, खेतों के अंदर, उसे हम कॉटन फाइबर में चेंज कर देते हैं और उसको हम यार्न के अंदर चेंज कर देते हैं. और उसी के बाद हमने देखा हम शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल जो कहाँ पे उगाया गया है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर उगाया गया है. वी मेक शुगर और गुड़, उससे हम शुगर और गुड़ बनाएंगे. और वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स. अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, मिट्टी से हम क्या बनाएंगे, ब्रिक्स मतलब ईंटें बनाते हैं. और द यूज ऑफ ब्रिक्स आर टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग. और ब्रिक्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे. सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली became associated with the different kind of the industry that came up. तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ये इंडस्ट्री बेस है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. तो नेक्स्ट में हम देखते हैं टर्सरी सेक्टर में देखा हमने कि ये आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल अंडर. तो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर के बाद हम क्या देखते हैं, एक सेक्टर और है जैसे कि हमारा टर्सरी सेक्टर है. ये डिफरेंट है दोनों से. कैसे, दीज आर द एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये हेल्प करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी, वो मैंने आपको बता दिया हेल्प कैसे करेगा. ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन से भी हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी की.
एग्जाम्पल दिखाया गया है, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो चीजें हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोड्यूस की जाती हैं उनको किसकी जरूरत रहेगी, उनको जरूरत रहेगी ट्रांसपोर्ट की, बाय ट्रक और ट्रेन, जो कि हम ट्रक से और ट्रेन से हम क्या करते हैं, हम गुड्स को यहाँ से वहां ले जाने का काम करते हैं। एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल शॉप, तब उनको हम होलसेल और रिटेल शॉप के अंदर बेच देते हैं। एट टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोदाम्स, कई बार जरूरत होती है कि हमारे पास जो सरप्लस चीजें होती हैं उनको हम गोदाम के अंदर जो है स्टोर करें। वी ऑल्सो मे बी नीड टू टॉक अदर टेलीफोन, सेंड लेटर कम्युनिकेशन एंड बोरो मनी फ्रॉम बैंक एंड टू हेल्प द प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेड। अब हमें इसके साथ साथ कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। आज हम क्या करते हैं, घर पे बैठे बैठे विदेशों के साथ भी डील कर देते हैं कि हमें इतना माल चाहिए, यहाँ पे भेज देना, ऐसे भेज देना, ठीक है। तो हम ये भी हमारा कम्युनिकेशन भी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, ठीक है। बहुत तरह की जो डील होती है ये हम फोन पे साइन कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, तो एक तरह से हम क्या कहेंगे, जो टर्सरी सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या आएंगी, बैंकिंग की सर्विसेज भी आएंगी, ट्रांसपोर्ट की भी आएंगी, कम्युनिकेशन की भी है, स्टोरेज की है, ये सभी सर्विसेज हमारी इसके अंदर आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट टर्सरी सेक्टर के अंदर आ जाती है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोरेज जो एक्टिविटी है वो किसके अंदर आएगी, वो टर्सरी के अंदर आएगी। बैंकिंग, बैंकिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, बैंकिंग जो है, अब बैंकिंग कैसे हेल्प करेगा इन दोनों को। अब देखो कोई भी किसान यहाँ पे फसलें उगाएगा तो उसको क्या चाहिएगा, उसको खेत को तैयार करने के लिए और मॉडर्न सीड्स को खरीदने के लिए बहुत तरह के जो खर्चे होते हैं उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, पहले पैसे की जरूरत होती है। तो किसान क्या करता है, लोन लेता है बैंक से। तो बैंक ने क्या दी, सर्विस दी है, किसको दी है, किसान को दी है। तो ये भी एक सर्विस हो गई किसान के लिए। और फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सेकेंडरी के अंदर कोई भी इंडस्ट्री है बनने के लिए या कोई भी, इसको भी जो है सेकेंडरी जो है इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रियां होती हैं, उनको भी रॉ मेटेरियल खरीदना होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते होंगे। तो अब पैसे की जरूरत तो यहाँ पे भी होगी, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, बैंक लिया, किससे, बैंक से। तो यहाँ पे भी एक तरह से हम क्या कहेंगे कि बैंक ने भी इनको सर्विस दी है, ट्रांसपोर्ट ने भी सर्विस दी है, और हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन, टेलीफोन वगैरह ने भी सर्विस दी है कि हम घर बैठे बैठे किसी भी से डील कर सकते हैं। तो ये सब सर्विस दी जा रही है किसके द्वारा, टर्सरी के द्वारा। किन को दी गई है, सेकेंडरी को भी दी है, प्राइमरी को भी दी है, और आम जनता को भी दी गई है। तो ये चीजें हमारी इसी के अंदर आ जाती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टर्सरी सेक्टर है ये केवल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, इन कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, या सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो सर्विस सेक्टर केवल प्रोड्यूसिंग गुड्स के अंदर ही हेल्प नहीं करता है। ये फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर, अब यहाँ पे गुड्स से अलावा भी, मतलब केवल गुड्स बनाने के लिए ही हेल्प नहीं करता है, ये दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि वी नीड ए टीचर, हमें रिक्वायर टीचर की है, डॉक्टर की है, बार्बर की है, वॉशरमैन है, कोबलर है, लॉयर है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्कर्स हैं यहाँ पे, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो ये हमें केवल सेवाएं ही देंगे, सर्विसेज ही देंगे। टीचर क्या करता है, सर्विस देता है, उसमें कोई चीजें नहीं दी जा रही यहाँ पे। और डॉक्टर भी सर्विस दे रहा है, लॉयर भी सर्विस दे रहा है, कोबलर है, ठीक है। ये सभी हमें क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारा एक सर्विस सेक्टर के अंदर ही आते हैं ये सभी के सभी। तो इसके साथ साथ अब हमारा एक रिसेंट में हम क्या देखते हैं, इन रिसेंट टाइम सर्टेन न्यू सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक। अब हम क्या देखते हैं, जो नई चीजें हैं वो भी इसके अंदर आ गई है, वो क्या, हमारी आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमारी इसी सर्विस के अंदर आएगी, इसी सेक्टर के अंदर ही आएंगी। तो ये हमारा एक टॉपिक है जो क्लियर हो जाता है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देयर आर 3 मेजर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। इसके बारे में हमने डीपली पढ़ लिया है, और किसी का भी कोई डाउट है तो हम क्लास में क्लियर कर लेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू गेट ऑल दिस पॉइंट। थैंक यू।